प्यारे बच्चों, आपका +2 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 40th यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलीसेकेराइड्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, देयर अकुरेंस, कंपोजिशन, फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड्स molecular formula C6H10O5 as a whole multiple of N are formed when a large number, that is 100 to even 1000 of monosaccharide molecules join together with the elimination of water molecules. So this is the condensation polymerization reaction. In this reaction of condensation polymerization, when n moles of monosaccharides combine with the elimination of n moles of water to produce 1 mole of polysaccharide, the molecular formula is C6H10O6 as a whole multiple of n. Thus polysaccharides may be regarded as condensation polymers in which the monosaccharides as monomers are joined together by glycosidic linkage. General molecular formula of polysaccharide is C6H10O5 within the brackets as a whole multiple of small n, where small n is the number of molecules of monosaccharides as monomers which combine with one another to form one molecule of polysaccharide as a polymer. Some important polysaccharides are starch, number 2 cellulose, number 3 glycogen, number 4 dextrin. The first important polysaccharide is number 1 starch, which is also called amylum. The molecular formula of the starch is the general formula of the polysaccharide, that is C6H10O5 within brackets as a whole multiple of small n. The value of small n varies from source to source, that it may be from 200 to 1000 number of molecules of monosaccharides as monomers. It is the chief food reserve material or storage polysaccharide of plants and is found mainly in seeds, roots, tubers, wheat, maize, rice, potatoes, barley, bananas and sorghum are the main source of starch. Starch occurs in the form of granules which vary in shape and size depending upon their plant source. Properties of starch. Number 1. Starch is a white amorphous powder sparingly soluble in water. Starch is the major food material for us. It is hydrolyzed by the enzyme amylase present in saliva. The end product of this hydrolysis is glucose, which is an essential nutrient and acts as a biofuel for providing the energy to the living system. The second property of starch is on the hydrolysis with dilute acids or enzymes, starch breaks down first to smaller molecules, then to maltose and finally to D-glucose. तो जैसे कि आप मान लो 1 मोल स्टार्च लेते हैं तो सबसे पहले ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द स्टार्च। फिर जब सेकंड फेज में हाइड्रोलाइसिस होगा तो सेकंड फेज में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे माल्टोज में, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। इसके बाद जब फुल हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो जो माल्टोज मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू D-glucose molecules, which are the monomers of polysaccharide starch. The third property of the polysaccharide starch is that starch is a non-reducing saccharide. It neither reduces tolerance, reagent or Fehling's solution nor form an ozone. This suggests that all hemiacetal hydroxyl groups of glucose units at the anomeric carbon atoms at position 1 of the glucose monomers are not free
but are involved in alpha glycosidic linkages. Next is composition of starch. Starch is not a single compound but is a mixture of two components. Number 1. A water-soluble component is called amylose, which constitutes 15 to 20% of the starch. And number 2. A water-insoluble component called amylopectin, which constitutes 80 to 85% of starch. The aqueous solution of amylose, which is soluble in water, gives a blue color with iodine solution, which disappears on heating and reappears on cooling. The amylopectin, which is insoluble in water, on the other hand, does not give blue color with iodine solution. Both amylose and amylopectin are polymers of alpha D positive glucose. A molecule of amylose may contain 200 to 1000 glucose units, whereas a molecule of amylopectin may contain 2000 to 3000 glucose units. Next is structure of amylose. It is a linear polymer of alpha D positive glucose having helical structure in which anomeric carbon atom, that is carbon atom at position 1 of one glucose unit, is attached to the carbon atom at position 4 of the other glucose unit through a alpha glycosidic linkage. तो जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड and its molecular formula is C6H10O5 within the brackets as a whole multiple of small n, where small n जो है that is equal to 200 और 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टार्च है वो एज ए पॉलीसेकेराइड दैट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स, यानी कि इसका मतलब कि इसका जो मोनोमर है वो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट. अब स्टार्च जो है वो that is not a single compound but it is a mixture of amylose and amylopectin. amylose जो है आपका वो है 15 to 20%, जो कि लीनियर अनब्रांच्ड चेन ऑफ जो है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी हुई है. और जो amylopectin है वो स्टार्च में 80 to 85% होता है, और ये जो है वो ब्रांच्ड चेन जो है ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स की है, और इसकी जो स्मॉल चेन है दैट कंटेन्स 20 to 25 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स. तो आपको पता है जैसे कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है आपका डी प्लस ग्लूकोज का, उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं विच आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट चेन. पहले पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसमें जैसे आपको पता है दूसरी पोजीशन पे OH जो है वो राइट हैंड साइड को है, तीसरी पोजीशन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड को है, चौथी पोजीशन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी राइट हैंड साइड को है, पांचवी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी राइट हैंड साइड को है, और छठा जो है वो आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है. अब जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होता है कि जो फिफ्थ पोजीशन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द पेनल्टीमेट कार्बन एटम दैट इज कार्बन एटम एट पोजीशन 5 इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स राइट. That is why the configuration of natural occurring glucose is D. Further, it is optically active and it is dextrorotatory in nature. अब इसके बाद जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कि पोजीशन 1 पर है, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से द पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है वो अपनी ओर विड्रॉ कर लेती है. इस वजह से जो आपका कार्बन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. अब जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि पेनल्टीमेट कार्बन एटम से अटैच्ड है एट पोजीशन 5, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स ऑक्सीजन एटम. तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम जो है एक लोन पेयर डोनेट कर देती है कार्बन एटम ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप. और अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है उसे रिकवर करने के लिए प्रोटॉन लूज करता है एक्वस सॉल्यूशन में. अब प्रोटॉन जो है और जो ऑक्सीजन एल्डिहाइड ग्रुप की है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उसको लोन पेयर को गेन करके इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है.
यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द पेनल्टीमेट कार्बन एटम, दैट इज कार्बन एटम एट पोजीशन 5 इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स राइट, दैट इज व्हाई द कॉन्फिगरेशन ऑफ नेचुरल अकरिंग ग्लूकोज इज डी। फर्दर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। अब इसके बाद जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, जो कि पोजीशन 1 पर है, उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होने की वजह से द पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन जो है वो अपनी ओर विड्रॉ कर लेती है। इस वजह से जो आपका कार्बन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि पेनल्टीमेट कार्बन एटम से अटैच्ड है एट पोजीशन 5, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स ऑक्सीजन एटम, तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम जो है वो एक लोन पेयर डोनेट कर देती है कार्बन एटम ऑफ दिस एल्डिहाइड ग्रुप। और अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है उसे रिकवर करने के लिए प्रोटॉन लूज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब प्रोटॉन जो है और जो ऑक्सीजन एल्डिहाइड ग्रुप की है जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जो कि अटैच्ड है कार्बन 1 पे, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन एटम बोलते हैं, वो राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड है, देन इट इज अल्फा एनोमर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जो एनोमेरिक कार्बन एटम से अटैच्ड है लेफ्ट हैंड साइड को ओरिएंट हो जाता है, देन इट इज बीटा एनोमर ऑफ दिस। सो रेस्ट इज द सेम। आपने क्या करना है, 2 पे आपने HOH राइट हैंड साइड को है, 3 को OH लेफ्ट हैंड साइड को है, 4 को OH राइट हैंड साइड को है, 5 ने जो है वो बना दिया आपका, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्डिहाइड से कंबाइन हो गया तो बन गया हेमी एसिटल, और ये बन गया आपका C1C5 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया आपका। अब इसी तरह से देखो, 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड को है, 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को है, 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड को है, 5 वाले ने जो है वो एल्डिहाइड से कंबाइन करके हेमी एसिटल बना दिया, और ये बन गया C1C5 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये था आपका फिशर स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ स्टार्च। अब इसका अगर आपने हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है तो जैसे कि आपको पता है कि देयर इज 6 मेंबर्ड रिंग फ्रॉम पोजीशन 1 to 5 कार्बन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम है, तो आप क्या करेंगे कि एक हेक्सागोन ड्रा कर लेंगे, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम प्लेस कर देंगे। अब इसकी नंबरिंग जो है आप क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से शुरू कर देंगे कार्बन एटम की 1 2 3 4 5, और जो आपका 6th कार्बन एटम है यानी कि जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है दैट इज प्लेस्ड अबव द प्लेन ऑफ द हेक्सागोन। अब जो आपका हेक्सागोन है तो 6th पोजीशन पे आपने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है ऐड करने के बाद 5 पोजीशन पर आपने हाइड्रोजन एटम जो है वो बिलो द प्लेन ऑफ हेक्सागोन प्लेस कर देना है। अब आप देखिए कि जो आपकी 4 पोजीशन है फ्रॉम 1 to 4, ये 4 सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं फिशर स्ट्रक्चर में फ्रॉम पोजीशन 1 to 4। अब फिशर स्ट्रक्चर में जो ये 4 सेकेंडरी कार्बन एटम है इनके साथ जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं यानी कि विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दीज आर प्लेस्ड बिलो द प्लेन ऑफ द हेक्सागोन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर C1 के साथ OH राइट हैंड साइड को है तो OH हम नीचे लिखेंगे, C2 के साथ OH राइट हैंड साइड को है तो इसके OH को भी नीचे लिखेंगे, C3 में OH लेफ्ट हैंड साइड को है जबकि राइट हैंड साइड को H है तो राइट हैंड साइड को H प्लेन के नीचे लिखेंगे। इसी तरह से C4 में OH राइट हैंड साइड को है तो इसे प्लेन के नीचे। इस तरह से जो ग्रुप्स लेफ्ट हैंड साइड को ओरिएंटेड है उन्हें अबव द प्लेन हम प्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर C1 पर H लेफ्ट हैंड साइड को है तो अबव द प्लेन ऑफ हेक्सागोन, और 2 पे हाइड्रोजन, तो जो लेफ्ट हैंड साइड को ग्रुप्स हैं उनको हम अबव द प्लेन ऑफ हेक्सागोन
इस तरह से प्लेस करते चले जाएंगे और इस तरह से हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली आपका जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, अब इसमें देखिए C1 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को ओरिएंटेड है, तो जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड को ओरिएंटेड है दीज आर प्लेस्ड अबव द प्लेन ऑफ द हेक्सागोन। 1 पे है आपका OH, 2 पे लेफ्ट हैंड साइड को है H, 3 पे लेफ्ट हैंड साइड को है OH, 4 पे लेफ्ट हैंड साइड को है H। और अब जो आपके ग्रुप फ्रॉम पोजीशन 1 to 4 राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड है दीज आर प्लेस्ड बिलो द प्लेन ऑफ द हेक्सागोन। अब देखिए 1 पे है आपका राइट हैंड साइड को H, 2 पे है OH, 3 पे है आपका H, 4 पे है आपका OH और ये जो 5th पोजीशन का आपका कार्बन एटम है इसमें अबव द प्लेन और नीचे जो है आपने हाइड्रोजन नीचे। तो इस तरह से आपका बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट्स। Thus, by knowing the structure of alpha D plus glucose monomer of amylose, we can draw the structure of amylose. तो सबसे पहले आप फिशर प्रोजेक्शन जो स्ट्रक्चर है एमाइलोज का उसको ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि एमाइलोज जो है दैट इज लीनियर अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 200 to 1000 जो है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं एक जो लीनियर चेन पॉलीमर है एमाइलोज का। तो आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स को एक लीनियर चेन में जो है इन फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स में जो है उनको प्लेस कर देंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एक यूनिट है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम एट पोजीशन 4 दैट interacts with the hydroxyl group which is attached with the anomeric carbon atom at position 1 of the other alpha D plus glucose unit है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और एक आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन एटम जो है वो बना देता है। तो इस तरह से हर एक ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो दूसरे ग्लूकोज यूनिट के साथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन एटम बनाता है जिसे हम बोलते हैं C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो दिस इज द फिशर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज एज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज विच इज ए अनब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसमें देखिए आप हर एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं वो C4C1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन एटम जो है बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। सो दिस इज द फिशर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। अब इसका अगर हमने हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि जो आपका फिशर स्ट्रक्चर है वहाँ से आप जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो यूनिट है उसको एज ए हेक्सागोन जो है उनको एक लीनियर चेन में प्लेस कर देते हैं और बाय प्लेसिंग द ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम्स इन द हेक्सागोन रिंग अकॉर्डिंग टू रूल जो कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। इसमें आप हर एक अल्फा डी प्लस जो आपका ग्लूकोज यूनिट है आप देखते हैं कि उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द एनोमेरिक कार्बन एटम एट पोजीशन 1 वो इंटरेक्ट करता है विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम एट पोजीशन 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। और इस तरह से ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो थ्रू C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस जो है वो आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स की एक लीनियर चेन बना देती है विच कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स। सो दिस इज द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द amylose. The next component of the starch is amylopectin. So structure of amylopectin. Amylopectin on the other hand is a highly branched polymer. It consists of a large number of short chains, that is several hundreds.
each containing 20 to 25 glucose units, which are joined together through alpha glycosidic linkages involving anomeric carbon atom at position 1 of one glucose unit with the carbon atom at position 4 of the other glucose unit. Further, the anomeric carbon atom or the carbon atom at position 1 of terminal glucose unit in each chain is further linked to the carbon atom at position 6 of some other glucose unit in the next chain through C1C6 alpha glycosidic linkage. This gives amylopectin a highly branched structure. Let us discuss the structure of amylopectin. So amylopectin is the second constituent of starch, which is insoluble in water. So like amylose, amylopectin is also a polymer of alpha D plus glucose, यानी कि इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, जैसा कि एमाइलोज में है. बट एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल एंड लीनियर अनब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, जबकि आपका एमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्युबल है एंड हाईली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है. अब जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन है, तो इन टर्म्स ऑफ हावर्थ प्रोजेक्शन हम क्या करेंगे कि जो आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट है उसे एज ए हेक्सागोन हम एक लीनियर चेन में अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि एमाइलोज में करते हैं. अब आपको पता है कि जैसे कि एमाइलोज में होता है कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम एट पोजीशन 4 इन वन ग्लूकोज यूनिट, वो इंटरेक्ट करता है विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बन एटम एट पोजीशन 1, यानी कि जो एनोमेरिक कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और इस तरह से बाय लूजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स ए C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो इसी तरह से जो आपके अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट है वो लीनियरी एक दूसरे से कंबाइन होते चले जाते हैं बाय फॉर्मिंग C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एज इन केस ऑफ एमाइलोज. बट इन केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन इट इज हाईली ब्रांच्ड. तो ये क्या करता है कि इसमें कोई एक जो टर्मिनल कार्बन है, यानी कि जो आपका एनोमेरिक कार्बन है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दूसरी चेन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो कि कार्बन एटम एट पोजीशन 6 के साथ अटैच्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करके बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स C1C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. तो इस तरह से एक चेन जो है वो दूसरी चेन से जो है वो जुड़ जाती है, और इस तरह से ये हाईली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन जो है वो प्रोड्यूस होता है. The next important polysaccharide is cellulose. The molecular formula of cellulose is the same as that of the starch. Like starch, cellulose is also a non-reducing sugar. Now, occurrence. Cellulose occurs exclusively in plants and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is a predominant constituent of cell wall of plant cells. Next is structure of cellulose. Cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D positive glucose units, which are joined by glycosidic linkage between anomeric carbon atom, that is carbon atom at position 1 of one glucose unit, and the carbon atom at position 4 of the next glucose unit. Cellulose may contain 300 to 3000 beta D positive glucose units. It is insoluble in water. Let us discuss the structure of cellulose. The molecular formula of cellulose is the same as that of the starch. So it is a polysaccharide and its molecular formula is C6H10O5 within brackets as a whole multiple of small n, where small n is equal to the number of beta D positive glucose units, which varies from 300 to 3000 glucose units per molecule of the cellulose.
Cellulose is a linear condensation polymer of beta D positive glucose. Now here is the Fischer structure of monomer beta D positive glucose. So beta D positive glucose is the monomer of polymer cellulose. अब इसमें क्या है कि देर आर 6 कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट चेन, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द एनोमेरिक कार्बन एटम दैट इज एट पोजीशन 1 is oriented towards the left hand side. There is a pyranose form ring which contains 5 carbon atoms from position 1 to 5 and 1 oxygen atom, and there is one primary alcoholic group at position 6. Now to draw the Haworth projection formula from the Fischer projection structure, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका पायरोनोस टाइप रिंग है विच कंटेन्स कार्बन एटम्स फ्रॉम पोजीशन 1 to 5 एंड 1 ऑक्सीजन एटम से एज ए हेक्सागोन रिंग जो है हम ड्रॉ कर देंगे और ऑक्सीजन एटम को प्लेस कर देंगे एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन. अब हम नंबरिंग करेंगे क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन से एज ए 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज, और 6th पोजीशन पर आप प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है अबव द प्लेन ऑफ हेक्सागोन प्लेस कर देंगे. अब इसमें जो आपके 4 सेकेंडरी कार्बन एटम्स है फ्रॉम पोजीशन 1 to 4, उनके साथ जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड है, उनको आप फ्रॉम पोजीशन 1 to 4 ऑन हेक्सागोन बिलो द प्लेन ऑफ हेक्सागोन प्लेस कर देंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं सेकेंडरी कार्बन एटम्स के साथ फ्रॉम पोजीशन 1 to 4, उनको आप अबव द प्लेन ऑफ द हेक्सागोन फ्रॉम पोजीशन 1 to 4 प्लेस कर देंगे. तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विच इज अटैच्ड विद द एनोमेरिक कार्बन एटम इन बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मोनोमर में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो है इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, जबकि हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है विच इज अटैच्ड विद द एनोमेरिक कार्बन एटम एट पोजीशन 1 इज प्लेस्ड अबव द प्लेन ऑफ द हेक्सागोन. सो दिस इज द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज ए मोनोमर ऑफ polymer cellulose. The next important polysaccharide is glycogen. The molecular formula of glycogen is the same as that of the starch or cellulose. The molecular formula of glycogen is C6H10O5 within the brackets as a whole multiple of small n, where small n is the number of monomeric units present in the polysaccharide molecule of glycogen. So here the monomeric unit is alpha D plus glucose. Now occurrence and structure of glycogen. The carbohydrates are stored in animal body as glycogen. It is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched. It is present in liver, muscles and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन इज आल्सो हाईली ब्रांच्ड कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी कि इसका मोनोमेरिक यूनिट भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है जैसा कि एमाइलोपेक्टिन में है. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एमाइलोपेक्टिन की जो स्मॉल चेन है दैट कंटेन्स 20 to 25 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स, जबकि ग्लाइकोजन की जो स्मॉल चेन है दैट कंटेन्स 10 to 15 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स. ये डिफरेंस है दोनों में सिर्फ, बाकी स्ट्रक्चर हावर्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर सेम है. अब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि अमाइलोपेक्टिन की तरह आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स जो है उनको एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर देते हैं ताकि जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम एट पोजीशन 4 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट can interact with the hydroxyl group which is attached with the anomeric carbon atom of the other glucose unit. और इस तरह से due to loss of water molecule there is formation of C1C4 alpha glycosidic linkage. तो इस तरह से एक अल्फा डी
पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट जो है वो दूसरे से जुड़कर जो है एक स्ट्रेट लीनियर चेन बनाता है। अब दूसरी जो आपकी लीनियर चेन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द टर्मिनल कार्बन एटम, दैट इज कार्बन एटम एट पोजीशन 1, यानी कि जिसे हम आइनोमेरिक कार्बन एटम भी बोलते हैं, उसके साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इंटरेक्ट कर देता है दूसरी चेन के ग्लूकोज यूनिट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ विच इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम एट पोजीशन 6, और इस तरह से ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो C1C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देता है। इस तरह से एक चेन दूसरी चेन से जो है वो अटैच हो जाती है। सो दिस गिव्स द हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर ग्लाइकोजन। Importance of carbohydrates. So first importance, carbohydrates as biofuels. Carbohydrates provide energy for functioning of living systems and thus act as biofuels. So oxidation of glucose to carbon dioxide and water by a series of enzyme catalyzed reactions provides energy for the functioning of living cells. तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल of glucose molecules combine with 6 mole of oxygen molecules to produce 6 mole of carbon dioxide and 6 mole of water and produce energy is equal to 2880 kilojoule. Next importance of carbohydrates. Carbohydrates act as reserve food material. The polysaccharide starch is the major food material in plants. It is stored in the seeds and acts as the reserve food material for the tiny plant. Similarly, glycogen stored in liver and muscles acts as the reserve food material in animals. The next importance of carbohydrates, that is as constituents of biomolecules. 2 aldopentoses, that is D-ribose and 2-deoxy-D-ribose sugars are the essential components of ribonucleic acid, RNA and deoxyribonucleic acid, that is DNA respectively. D-ribose is also an essential component of adenosine triphosphate, that is ATP. Carbohydrates are also found in biosystem in combination with many proteins and lipids. The next importance of carbohydrates, that is carbohydrates as structural material. The polysaccharide cellulose acts as the chief structural material of cell walls of bacteria and plants. Cellulose in the form of cotton is used for making clothes, and cellulose in the form of wood is used for making doors, windows, furniture, etc. The next importance of carbohydrates, carbohydrates as industrial material. Carbohydrates provide us raw materials for many industries like textiles, paper, liquors and breweries. Thank you. धन्यवाद.